Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, just 3 days, and another important exam of this year, IBPS PO, knocks your door. Every exam gives an opportunity to prove yourself. And the moment you cross the cutoff, you are eligible for next leg. So, what is to be done during these 3 days so that you ultimately get into the list of people, those will be called for mains examination? This is our immediate concern. As far as my own hunch goes, more than 35,000 candidates will be called for mains because vacancies are going to increase. So as far as number of vacancies are concerned, you should be rest assured these vacancies may touch around 3,600 to 4,400 range. And keeping in mind this number, IBPS may call around 35,000 people for second leg. Now I have to make in first 35,000 people. Last year this number might be higher. This may be in the range of 47,000 or so. So this time less number of people will be called for mains. But at the same time, less number of people are appearing for the prim. This we have to keep in mind. Secondly, out of these people, many people were not preparing so hard for these examinations because they were told no exam will happen in 2020. But you are the lucky one, those who are preparing hard from day one. Because this channel always told you that study, study and study. And that gives you edge over others. So you will continue to keep this edge with you and become victorious in first leg. So what is to be done today? I have given you a link of mock test in the description and comment column. Attempt one mock test from there. This is very good mock test I have suggested. If you have not taken this mock test, take it today. Subscribe it today. It is going to help you and you will appreciate me later on. After attempting this mock test, identify your weak areas and focus on that. And today you should dedicate the day to English because the difference in marks in English is going to play a very vital role in ultimate cutoff. So read grammar book, improve your vocabulary, refresh your vocabulary and give maximum possible time to English language today. That means if you are planning to give 8 hours on study, give at least 4 hours to English, 2 hours to quant, 2 hours to reasoning. And in between you should take adequate rest also. Because as we move closer to the examination, it is necessary that we should be fresh, we should not be tired on the day of examination. So start taking proper rest because you are already preparing for so many months. Your preparation is almost there. Now this is the time where we have to rearrange our weapons. So attempt one mock test, spend half the time to English and take proper rest. This should be your buzzword for today. God bless you with success. Remain confident. मूव अहेड. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब देखते देखते वक्त गुजर गया और केवल 3 दिन बचे हैं जब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं. IBPS PO प्रीम का एग्ज़ाम आज से 3 दिन बाद हो जाएगा और हमें एक मौका देगा अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाने का. और इसके लिए नहायत ज़रूरी है कि इन 3 दिनों को हम कैसे बिताएंगे
ये हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। काफ़ी लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, आखिरी दिनों में घबरा जाते हैं और वो सारा किया कराया उनका बेकार हो जाता है। तो यदि हम इन 3 दिनों को बहुत अच्छे ढंग से बिताएंगे तो हम इस मेहनत को रंग ला पाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं सर कितने लोग बुलाए जाएंगे, बहुत हाई कट ऑफ होगा। इस चीज़ की चिंता आपने नहीं करनी है। मेरा मानना यह है लगभग 35,000 लोग मेन के लिए बुलाए जाएंगे और इन 35,000 में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। पिछले साल 47-48,000 लोग हो सकते हैं जो बुलाए गए हो, पिछले साल से कम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि वैकेंसीज कम है। पर यह भी सच है काफ़ी लोगों ने इस बार तैयारी भी नहीं की है क्योंकि उनको तो यही बताया गया था 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उस लिहाज से कंपटीशन आपका उतना कठिन नहीं है जितना पिछले साल था। पिछले साल तो सबको पक्का था ना एग्ज़ाम होगा, इस साल कच्चा पक्का था काफ़ी लोगों के लिए। और आप एक ऐसे चैनल का हिस्सा हो जहां लगातार आपको बताया गया पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो आप औरों से आगे हो। अब ये जो आपकी लीड है इसको बनाए रखना। जैसे देखते हैं ना रेस के अंदर एक आदमी शुरू में लीड ले लेता है और एक आदमी पीछे दौड़ रहा होता है, और कई बार जो आखिर तक आगे दौड़ रहा होता है पीछे वाला उसको क्रॉस कर जाता है क्योंकि वो अपना इनिशिएटिव छोड़ देता है, उसको लगता है अब तो मैं जीत ही चुका हूँ। तो इसीलिए जो आखिरी 3 दिन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें हमने अपनी लीड छोड़नी नहीं है। लीड आपकी बन चुकी है, अब इसको बनाए रखना है लीड को। तो उसके लिए आज आप क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जो लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम के अंदर। बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आज वो इसको सब्सक्राइब कर लें। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपनी कमियां पता लगी। अब आज का दिन जो है आपका इंग्लिश फोकस डे होना चाहिए क्योंकि कम दिन बचे हैं, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट को जरूर फोकस करिए। तो अगर आपने सोचा कि 8 घंटे आज मैं पढ़ूंगा तो 4 घंटे खाली इंग्लिश को दीजिए। उसके अंदर ग्रामर को अधिक टाइम दीजिए, वोकैबुलरी दोबारा रिफ्रेश करिए क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस साल के कट ऑफ में। अधिकांश लोगों का जो क्वांट है रीजनिंग है वो अच्छा ही होता है, मगर काफ़ी लोगों की इंग्लिश के अंदर बहुत वेरिएशन होती है। तो यदि आप आज इंग्लिश पक्की कर लेते हो तो आपके ये एरिया भी अच्छा हो जाएगा और आप पहला लेग आसानी से पार कर लेंगे। तो सिस्टमेटिक वे से तैयारी करिए। अच्छा मॉक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया है, उसको इस्तेमाल करिए। आपकी मेहनत आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, ईश्वर आपके साथ है, आप जरूर कामयाब होंगे। इस चीज़ की टेंशन नहीं लगानी है कि मेरा पेपर पास होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। आपने मेहनत की है तो जरूर होगा, सिर्फ अपनी मेहनत में कमी नहीं डालनी है। लगे रहना है, पढ़ाई करते रहनी है, पढ़ाई करते रहनी है। गॉड ब्लेस यू।